Hello students, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So in our last class we started our new topic, which is chapter 12, the earth and the sky, right? We learnt in our last class about the heavenly bodies. हमारे स्पेस को हेवन भी बोला जाता है, दैट्स वाई जो उसके अंदर प्रेजेंट है बॉडीज़, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, उनको हम हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं, राइट? वी ऑल्सो लर्न अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ एंड द सर्फेस ऑफ द अर्थ, राइट? अर्थ की शेप कैसी है? राउंड शेप की है. एंड surface, there are two types of surface on the earth, land and water. 2/3 of our earth's surface is covered with water and 1/3 of it is land, right? Now the sun, we learned about the sun, that sun is a big star. It is not a planet and it is 150 million kilometers away from our earth. It is much bigger than the earth. and जो सन रेज होती हैं उसे कितना टाइम लगता है अर्थ तक पहुंचने में? 8.5 minutes. How many minutes? 8.5 minutes to reach the earth. So now today in this class we will learn about the moon and the stars. So without wasting time, let's start. Moon is the natural satellite of our Earth. It goes around it and takes 28 days to complete one round. It is full of rocks and big holes called craters. There is no water on Moon, so life is not possible on it. Moon does not have light of its own. It reflects the sun's light, therefore it appears bright. It is smaller than the sun, but it appears big because it is nearer to Earth than the sun. See, as you learnt about the moon. So, what moon is? Moon is a natural satellite. There are two types of satellites in our space. First one is natural satellite, जो natural होती हैं, means जो हमारे environment में already exist करती हैं, like moon. Moon is a natural satellite. And second is artificial satellite. Artificial satellite वो satellites होती हैं जो human being द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं और स्पेस में भेजी जाती है, लाइक वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट. ये सब हमें स्पेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एंड हमारी नेटवर्किंग में हेल्प करती है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में आप अपनी फर्दर क्लासेस में जानेंगे. सो अभी हम मून के बारे में जानते हैं. सो heavenly bodies that revolve around a planet are called satellite. See, what satellites are? Satellites are those heavenly bodies that revolves around a planet. And planet कौन सी heavenly bodies है? That revolves around the sun, right? So the moon is a satellite of the earth. Moon क्या है? Moon earth की satellite है. So the moon revolves around the earth. It is about 3,84,400 kilometer away from the earth. Moon earth से कितना दूर है? 3,84,400 kilometer. It takes about 27.3 days to complete one rotation about its axis as well as one revolution around the earth. See, moon को कितना टाइम लगता है अर्थ के चक्कर लगाने में और अपनी खुद की एक्सिस में रिवॉल्व करने में? 27.3 डेज़ लगते हैं. अभी वीडियो में आपने देखा था 28 डेज़ बोला था, वो अप्रॉक्सीमेट बोला था, बट अगर हम पॉइंट में देखें तो 27.3 डेज़ लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली. सो आप ये याद रखिएगा कि मून को अपनी एक्सिस पे रोटेट होने पे और अर्थ का चक्कर लगाने में 27.3 डेज़ लगते हैं. ओके, अपनी एक्सिस में मतलब मून जहाँ पे है उसी जगह वो ऐसे गोल गोल घूमता है, मीन्स अपनी एक्सिस में ही चक्कर लगाता है एंड अर्थ के चक्कर तो वो लगाता ही है. द मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. देर इज़ नो एयर एंड वाटर ऑन द मून, सो देर इज़ नो लाइफ ऑन इट. सी, मून की खुद की कोई लाइट नहीं है. अगर सन की लाइट मून पे नहीं पड़ेगी तो वो शाइन नहीं कर सकता,
हमें लाइट नहीं दे सकता. सो मून किस लिए रिफ्लेक्ट करता है? इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. देर इज़ नो एयर एंड वाटर ऑन द मून, सो देर इज़ नो लाइफ ऑन इट. एयर एंड वाटर कहाँ पे मिलते हैं हमें? अर्थ में मिलते हैं, एंड वी लिव ऑन अर्थ. फैक्ट 5. यू कुड जम्प 6 times हायर ऑन द मून दैन ऑन द अर्थ. सी, जब हम अर्थ में जंप करते हैं उससे 6 times हायर अगर हम मून पे जंप करेंगे तो उतना ऊंचा जाएंगे, जस्ट बिकॉज वहाँ एयर नहीं है. दैट्स वाई, दिस इज द रीज़न बिहाइंड इट. देयर आर ह्यूज होल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून. दीज होल्स आर कॉल्ड क्रेटर्स. सी, आपने सबने सुना होगा कि मून पे गड्ढे होते हैं. उन होल्स को हम क्या बोलते हैं? क्रेटर्स. व्हाट वी कॉल इट? क्रेटर्स. Many men have landed on the moon. The first man to land on the moon was an American, Neil Armstrong. He landed on the moon in 1969. See, बहुत से लोग जो स्पेस में जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट्स. सो बहुत से लोग स्पेस में गए हैं, मून पे गए हैं. जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पे अपना पहला कदम रखा था, वो कौन थे? He is Neil Armstrong. He is an American. He landed on the moon in 1969. So ये आपको याद रखना है that who was the first man to step on the moon. He was an American, Neil Armstrong. He landed on the moon in 1969. So there is another fact file. The first Indian to go into space is Rakesh Sharma. See, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला इंडियन व्यक्ति कौन था जो स्पेस में गया था, then you answer Rakesh Sharma. कल्पना चावला is the first Indian woman to go into the space. और first Indian woman कौन सी थी? कल्पना चावला. Now come on to the topic phases of the moon. See, as you all know that moon has not a definite shape. मून की एक डेफिनेट शेप नहीं है. मून की शेप चेंज होती रहती है. कभी आपने देखा होगा कि फुल मून होता है, कभी हाफ मून होता है. सो क्या रीज़न है उसके पीछे कि मून की शेप चेंज होती रहती है? लेट्स लर्न अबाउट इट. The moon revolves around the Earth in a fixed orbit. The moon does not have its own light. Sun gives light to the moon. When the moon is between the Earth and the Sun, we cannot see the moon at all. This is because the side of the moon facing the Earth does not get sunlight. This is called the new moon. After 2 to 3 days, we can see some part of the moon. This phase is called the waxing crescent. As the moon is gaining light, that is, expanding in illumination, we use the term waxing. About a week after the new moon, we can see half of the moon. This phase is called first quarter. Two or 3 days after the first quarter, more than half of the moon is visible. This phase is called the waxing gibbous. About 2 weeks after the new moon, we can see the full moon. This is because the full side of the moon facing the Earth gets sunlight. Now, the moon begins its return journey from the full moon to the new moon.
The next phase is called the waning gibbous. As the moon is now losing light, that is, decreasing in illumination, we use the term waning. The next phase is the last quarter, followed by the waning crescent. When the moon comes back between the Earth and the Sun, it enters the new moon phase again. These changing shapes of the moon are called phases of the moon. So, as you learned about the phases of the moon, कि मून के डिफरेंट फेस क्यों होते हैं, डिफरेंट शेप्स क्यों होती हैं. मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, इट रिफ्लेक्ट्स बैक द लाइट ऑफ सनलाइट, राइट. सो मून की जिस फेस पे, मतलब जिस एरिया पे सनलाइट पड़ रही होती है, वही हमें अर्थ में शो होता है. जस्ट बिकॉज मून रोटेट करता रहता है, अर्थ के चार चक्कर लगाता रहता है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता रहता है. यही रीज़न है कि जहाँ पे सनलाइट पड़ती है वही एरिया सिर्फ हमें अर्थ से दिखता है. Every night the shape of the moon is different. The moon, however, does not change its shape. It is due to the change in the position of the earth. It is due to the change in the position of the earth. It appears that the moon changes its shape. These different shapes of the moon are called the phases of the moon. See, यहाँ पे क्या बोला गया है? It is due to the change in the position of the earth. जैसे कि हम सब ने पहले ही लर्न किया है ये कि अर्थ इज़ अ प्लैनेट एंड अर्थ किसके चक्कर लगाती है? राइट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ सन के चक्कर लगाती है एंड मून अर्थ के चक्कर लगाता है. सो जैसे जैसे अर्थ की भी पोजीशन चेंज होती रहती है, मून की भी पोजीशन चेंज होती रहती है, वैसे ही मून की शेप्स चेंज होती रहती हैं, क्योंकि सभी मूव कर रहे हैं, सभी अपनी रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं. रिवोल्यूशन मीन्स पूरा एक चक्कर लगाना ऑर्बिट पे, उसे रिवोल्यूशन बोला गया है, राइट. सो यही रीज़न है कि मून की शेप चेंज होती रहती है. जस्ट बिकॉज अर्थ मूव करती है, मून मूव करता है, तो जिस फेस पे, मतलब जिस एरिया पे मून के सनलाइट पड़ती है वही शो होता है अर्थ. सो द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून. इसे हम फेसेस बोलते हैं. सो ये हमें डिफरेंट फेसेस शो किए गए हैं. आपने वीडियो में भी अभी लर्न किया कि कैसे मूव रोटेट करता रहता है और कैसे उसके फेस चेंज होते रहते हैं. सो पहले न्यू मून मीन्स बिल्कुल भी मून हमें शो नहीं होता है. क्रिसेंट मून, वीडियो के अंदर क्रिसेंट मून को वैक्सिंग क्रिसेंट भी बोला गया है. वैक्सिंग वर्ड का यूज़ इसलिए किया गया है कि इस टाइम पे न्यू मून बन रहा है. मीन्स मून जो है वो लाइट ले रहा है. धीरे धीरे सनलाइट मून के पूरे फेस पे आती रहेगी और मून की शेप बढ़ती रहेगी, हाफ से और ज़्यादा, फिर पूरा मून बन जाएगा वो. दैट्स वाई वीडियो के अंदर वैक्सिंग क्रिसेंट बोला गया था एंड वैक्सिंग गिबस बोला गया था, राइट. एंड जब ये घटता है दोबारा से, मीन्स फुल मून से फिर से गिबस मून, फिर हाफ मून, फिर क्रिसेंट मून एंड फिर न्यू मून की शेप, मीन्स बिल्कुल ही मून नहीं दिखता. तो उसमें वीडियो के अंदर कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? वैनिंग. यस, वैनिंग वर्ड इज़ यूज्ड फॉर द डिक्रीजिंग ऑफ द लाइट. मीन्स मून की लाइट अब डिक्रीज़ हो रही है, उसकी जो एरिया है उस पर अब सनलाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, दैट्स वाई अब उसकी शेप घटती जा रही है, इसलिए वो वर्ड वैनिंग यूज़ किया गया. एंड फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ द लाइट जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है, एल्यूमिनेशन का मीन्स लाइट ही होता है, रोशनी, जो आपको वीडियो के अंदर बताया गया है. वो इसलिए है क्योंकि मून की लाइट इंक्रीज़ हो रही है, दैट्स वाई वी यूज़ द वर्ड वैक्सिंग. एंड डिक्रीज़ हो रही है, वी यूज़ द वर्ड वैनिंग. वैनिंग क्रिसेंट, वैनिंग गिबस, वैक्सिंग क्रिसेंट एंड वैक्सिंग गिबस. ओके. सो न्यू मून की कंडीशन में एक चीज़ होती है जो हर मंथ होती है. क्या होता है वो? यस, अमावस्या, जब बिल्कुल भी मून हमें नहीं दिखता, राइट. क्योंकि मून जो अपना पूरा रिवोल्यूशन है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है? 27.3 डेज़ में. एंड उसके बाद क्या आ जाती है? अमावस्या. एंड आफ्टर द 15 डेज़ ऑफ अमावस्या क्या आता है? फुल मून.
पूरा मून बन जाता है। अमावस्या आती है, मून बिल्कुल नहीं शो होता, फिर क्रिसेंट मून बनता है, देन हाफ मून, देन गिबस मून। ये ना ही स्क्वेयर है ना ही क्या है, राउंड है। स्क्वेयर से ज़्यादा एंड राउंड से कम। गिबस मून, फुल मून, पूरा मून हमें, राउंड मून हमें शो होता है। एंड जब फुल मून हमें शो होता है तब भी मंथ में एक चीज़ आती है, आप सबको पता होगा, मे बी, यस, पूर्णिमा, जिसे हम कहते हैं पूर्णवाशी बोलते हैं जो हम। आप अपनी मम्मी से पूछना। पूर्णिमा और अमावस्या, अमावस्या वाले दिन मून नहीं निकलता, निकलता इन द सेंस मून नहीं दिखता बिल्कुल भी स्काई में। एंड पूर्णिमा वाले दिन फुल मून होता है। When we do not see the lit up face of the moon at all, it is called a new moon. मीन्स जब हमें मून का बिल्कुल भी फेस नहीं दिखता, लिट अप मीन्स लाइटिंग फेस नहीं दिखता, देन इट इज़ द कंडीशन ऑफ द न्यू मून, वी कॉल इट न्यू मून. आफ्टर द न्यू मून द क्रिसेंट मून appears. We see only a thin part of its lit up face. lit up face मीन लाइट वाला फेस जो मून का है वो हमें बिल्कुल थोड़ा सा दिखता है, मीन्स बिल्कुल टुकड़ा दिखता है क्रिसेंट में. आफ्टर द क्रिसेंट मून वी सी हाफ मून. आफ्टर दैट वी सी गिबस मून. आफ्टर अ fortnight वी सी द होल ऑफ द लिटिल फेस ऑफ द मून. इट इज़ कॉल्ड द फुल मून. क्रिसेंट मून के बाद हाफ मून होता है, देन गिबस मून, एंड देन वी सी द होल मून. होल मून लिट अप फेस मीन्स पूरी लाइट वाला मून का फेस हमें दिखता है, जिसे हम बोलते हैं फुल मून. The day when we see the full moon is called the Purnima, and the day when the moon is not visible at all, it is called Amavasya, जैसे कि मैंने आपको भी बताया. Fact file: when we see more than half of the moon, it is called the gibbous moon. ये फैक्ट फाइल में गिबस मून की कंडीशन बताई गई है जब हमें हाफ से ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हाफ होता है जैसे स्फेयर की शेप होती है, उससे ज़्यादा जब हमें दिखता है वो गिबस मून की कंडीशन होती है. नाउ कम टू अवर स्टार्स. A star is an unimaginably large sphere, like a ball, of hot burning gases that gives out heat and light. Our sun is a star. Some stars in the universe are much bigger than the sun. They appear as very small points of light. When seen from the earth, there are certain groups of stars forming recognizable patterns or figures called constellations. If you look towards the north sky on a clear night, you can see 7 stars making a pattern called the Big Dipper or Ursa Major, Latin Great Bear. This is also called the Saptarishi. The brightest star in the northern sky, the Polaris or Dhruv Tara, is a part of the constellation Ursa Minor, Latin Little Bear. Some other constellations are Leo, Orion, and Centaurus. So as we learned about what stars is, stars सन से भी ज़्यादा बिग होते हैं, बट वो हमें छोटे छोटे क्यों नज़र आते हैं? जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं हमारी अर्थ से. There are millions of stars in the sky. On a clear night, we can see the sky studded. Studded means decorated. Means पूरा हमारा जो स्काई होता है वो स्टडीड होता है, डेकोरेट होता है, किससे? स्टार्स से घिरा हुआ होता है. With many twinkling objects, they are called stars. जो twinkling objects हम स्काई में दिखते हैं नाइट के टाइम पे, वो क्या होते हैं? Yes, they are our stars. They look very small because they are very far away from the earth. The sun is also a star. जैसे कि हमने पहले ही ये पढ़ लिया है कि that sun is also a star. It is the closest star to the earth.
सबसे पास का और क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है अर्थ के? सन. देयर आर अदर स्टार्स टू विच आर क्वाइट बिगर देन द सन बट आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. देयर आर अदर स्टार्स टू विच आर क्वाइट बिगर देन द सन, मीन्स जो सन से भी ज़्यादा बड़े हैं बट वो अर्थ से दूर हैं, दैट्स वाई वो बहुत छोटे नज़र आते हैं. द स्टार्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, दे हैव देयर ओन लाइट, दे नेवर ट्विंकल. स्टार्स की अपनी खुद की लाइट है एंड दे नेवर ट्विंकल. वाई? इट सीम्स दैट दे आर ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटमोसफेयर अराउंड द अर्थ. सी वट एटमोसफेयर इज़, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं. वट एटमोसफेयर इज़? यस, एटमोसफेयर इज़ द थिक लेयर अराउंड आवर अर्थ. जो हमारी अर्थ है उसकी जो सराउंडिंग पे जो थिक लेयर है एयर की, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ड्यू टू एटमॉस्फेयर इट सीम्स लाइक दैट द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता. ओके, सो सी स्टार्स शेप भी बनाते हैं, डिफरेंट शेप्स भी बनाते हैं स्टार्स. अगर कभी किसी ने देखा भी हो तो आपको स्काई में ये शेप्स देखने को मिल सकती हैं. एक है बिग डाइपर, ये 7 स्टार से बनी होती है. इसे हम सप्तऋषि भी बोलते हैं. किसमें? हिंदी में. ग्रेट बियर की ये शेप है. ये स्कॉर्पियो की शेप है एंड दिस इज़ द शेप ऑफ ओरियन. सी ये नेम दिए गए हैं इन स्टार्स की शेप को. ये तो बिल्कुल स्कॉर्पियो जैसा ही है. देखिए आपको पता चल रहा है इट्स द शेप ऑफ द स्कॉर्पियो, इज़ द शेप ऑफ द ओरियन, कि जैसे कोई धनुष बाण चला रहा है वैसे ही ओरियन की शेप है. एंड बिग डाइपर की 7 स्टार्स से मिलकर बनी होती है. ये सप्तऋषि बोलते हैं इसे हिंदी में. एंड इट्स द ग्रेट बियर शेप. सी ये जो शेप्स बनी हुई हैं, ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? स्टार्स आर स्कैटर्ड इन ग्रुप्स. स्टार्स स्कैटर्स होते हैं किसमें? ग्रुप में. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कैटर्ड? मीन्स बिखरे हुए होते हैं ग्रुप्स में. दीज ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन. सम ऑफ द वेल नोन कॉन्स्टिलेशंस आर द ग्रेट बियर. उर्सा मेजर भी बोलते हैं हम इसे. ग्रेट बियर, उर्सा मेजर भी बोलते हैं हम इसे. बिग डाइपर, सप्तऋषि, स्कॉर्पियो and the Orion. We have seen a very bright star shining towards the north. It is the pole star. We call it the ध्रुव तारा in Hindi. एक बहुत ही ब्राइट स्टार होता है नॉर्थ की तरफ, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पोल स्टार एंड इन हिंदी वी कॉल इट ध्रुव तारा. आई होप यू गेट अबाउट द व्हाट कॉन्स्टलेशन इज़. जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो डिफरेंट शेप्स बनाते हैं मिलके, उन्हें हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. अगर आपसे एग्जांपल पूछे जाए कॉन्स्टलेशन के, देन यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ द सप्तऋषि इन हिंदी एंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम उसे? बिग डाइपर, राइट? स्कॉर्पियो, ओरियन and the great bear. So this is all about your chapter, the earth and the sky. Today we learned about the moon, the phases of the moon and our stars. I hope you understood all the things. So now you have to read this chapter. Thank you and take care.